आदाब केबीनेट 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाल्की में अन्ना बहु साठे के 102वें जन्मदिन के अवसर पर कर्नाटक रक्षा वेदी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेताओं की ओर से रोगियों में ब्रेड फ्रूट्स वितरण किए गए। मंकी पॉक्स को देखते हुए बेंगलुरु में एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग के आदेश। पुष्ट केसों में 21 दिन का आइसोलेशन भी जरूरी। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो सरकार वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं देती? केंद्र सरकार पर असद ओवैसी ने कसा तंज। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रचार के लिए सांसद निकालेंगे बाइक रैली। उपराष्ट्रपति दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी ने सभी सांसदों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम जोर शोर से मनाने के दिए निर्देश। तमिलनाडु में फिल्म उद्योग से जुड़ी 10 से अधिक हस्तियों के परिसरों पर आयकर के छापे। अब समाचार विस्तार से। बीदर के प्रसिद्ध शायर व शिक्षक मकसूद अली मकसूद हाल ही में रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने हिलाल उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कमठाना में 38 वर्षों से शिक्षक के तौर पर जुड़े हुए थे। हिलाल उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कमठाना में उनके सम्मान में एक विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथियों मोहम्मद अनवर अली, मोहम्मद जाफर असिस्टेंट टीचर, मोहम्मद इस्माइल प्रधान अध्यापक, मोहम्मद मुजीब अली, मुनीब अली, मोहम्मद मोइजुद्दीन डायरेक्टर हिलाल एजुकेशन सोसाइटी, मोहम्मद शफी अहमद CPEd टीचर और हामिद अली और दूसरों ने उनकी खूब प्रशंसा की और उनकी 38 वर्षीय सेवाओं की सराहना करते हुए शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। उनके रिटायर्ड होने पर सभी साथी शिक्षकों, मित्रों और छात्राओं की ओर से उन्हें सम्मानित किए जाने पर मकसूद अली मकसूद ने सभी का धन्यवाद किया। भाल्की में 1 अगस्त को अन्ना बहु साठे के 102वें जन्मदिन के अवसर पर कर्नाटक रक्षा वेदी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेताओं की ओर से भाल्की के सार्वजनिक सरकारी अस्पताल में रोगियों में ब्रेड और फ्रूट्स वितरण किए गए। इस अवसर पर राजकुमार डावरगांव, कर्वे यूथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मालासा कांत वाघे और अन्य उपस्थित रहे। भाल्की से सैमुअल की रिपोर्ट। इंदु अन्ना बहु साठे 102ನೇ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಯುವ ಸೇನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಣ್ಣಾ ಭಾವು ಸಾಠೆ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವನ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ವಿತರಣೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಇದರ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷನ್ನು ಮಾಡೋದಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಣ್ಣಾ ಭಾವು ಸಾಠೆ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನಾಗಲಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಅಣ್ಣಾ ಭಾವು ಸಾಠೆಯನ್ನು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವನ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದುಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಏನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್, ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಸೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ। ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಪಕ್ಷ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ವಿಲೀನ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಅಂತಂದ ತಪ್ಪು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಣ್ಣಾ ಭಾವು ಸಾಠೆ 102 ವರ್ಷ ಜನ್ಮದಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಷನೇ ಐತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಐತಿ।
ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಮುಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ವಿಲೀನ ಆಗಿರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಏನು ಹಂಪಲ ಇದು ಬಾಲ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಅಷ್ಟೇ राजकुमार और मंकी पॉक्स को देखते हुए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। साथ ही पुष्ट केसों के लिए 21 दिन का आइसोलेशन का फैसला भी किया गया है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पुष्ट मामलों के लिए कम से कम 21 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य होगा। जोनल स्वास्थ्य अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि स्क्रीनिंग टीमों को उनके संबंधित अधिकारी क्षेत्र में हवाई अड्डों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया जाए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि समुदाय के सभी संदिग्ध मामलों की अस्पताल आधारित निगरानी और लक्षित निगरानी दोनों के माध्यम से जांच और परीक्षण किया जाना चाहिए। बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके में स्थित मदरसा मिनहाजुल उलूम में एक स्टडी सेंटर बनाया गया है, जिसमें 16 से 17 वर्ष के युवक और युवतियां जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है वो यहां आकर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से SSLC की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस स्टडी सेंटर का मौलाना शमीम शेख के हाथों उद्घाटन किया गया। बेंगलुरु से केपी न्यूज का संवाददाता मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। आप हजरात के दुआओं के तोफ़ैल आज जामिया मिनहाजुल उलूम व दारुल क़ज़ा, जहाँ तकरीबन 150 बच्चे ज़ेवर तालीम से मुज़य्यन हो रहे हैं और यहाँ 3-4 शोबे हिफ्ज़ है और शोबे आलमियत पंजुम तक तालीम होती है। आज एक अच्छी शुरुआत और दुनियावी तालीम का आगाज़ हुआ, जिसका तमाम बेड़ा जनाब सैयद अब्दुल कबीर साहब, अब्दुल ज़ाहिर फाउंडेशन के जानिब से हमारे इन्हीं बच्चों को असरी तालीम और दुनियावी तालीम से मुज़य्यन करने के लिए एक मिसाली, मियारी और इनकलाबी कदम उठाया गया है। मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी साहब और हमारे पीछे बावकार काबिल एहतराम उलमा की जम्मे गफ़ीर इन तमाम की तायद है कि इंशाअल्लाह यहाँ से एक असरी तालीम का चश्मा बहेगा, जो दूर दूर तक मसाजिद के दरमियान ये तालीम फैलेगी और ये बच्चे हाफिज होंगे तो इधर SLC पास भी होंगे, ये बच्चे चाहरुम पंजुम में होंगे तो ये बच्चे PUC पास होंगे और ये बच्चे जहाँ इमाम, आलिम, मुअज्जिन होंगे वहीं इंशाअल्लाह दुनियावी तालीम में इंस्पेक्टर, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, IPS, IAS भी बनेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतना अच्छा काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जून तक करने के आदेश के बावजूद सरकार ने OROP पेंशन क्यों तय नहीं की है, हमारे सैनिकों की बकाया राशि क्यों नहीं दी गई। OROP पेंशन किसी भी हाल में 2019 में तय होनी थी। उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर अर्थव्यवस्था इतना अच्छा कर रही है तो हमारी वायुसेना के पास लड़ाकू जेट 42 के बजाय 30 स्क्वाड्रन क्यों नहीं है। क्या यही कारण नहीं है कि आप हमारे बहादुर पायलटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बावजूद उन्हें MiG-21 उड़ान के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था इतना अच्छा कर रही है तो हमारी नौसेना को 200 जहाज वाली नौसेना होने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को मुश्किल 130 जहाज़ों तक सीमित करने के लिए मजबूर क्यों किया गया है। नौसेना को तीसरा विमान वाहक पोत क्यों नहीं दिया जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रचार के लिए सांसदों द्वारा मोटर बाइक रैली निकाली जाएगी। 3 अगस्त को लाल किले से विजय चौक तक इस रैली का आयोजन किया जाएगा। सभी बीजेपी सांसदों से रैली में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। सुबह 8:30 बजे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली की शुरुआत करेंगे। बताते चलें कि देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम करने की योजना है कि 20 करोड़ घरों में तिरंगा इस दौरान लहराया जाएगा। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई, जिसमें सभी सांसदों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम जोर शोर से मनाने का निर्देश दिया गया। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी सांसदों को निर्देश दिया कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 9 अगस्त से 11 अगस्त तक सभी शहरों गांवों में
प्रभात फेरी निकालकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का प्रचार किया जाए। प्रभात फेरी में रघुपति राघव राजाराम और वंदे मातरम का गायन करें। प्रत्येक सांसद की प्रभात फेरी में उपस्थित अनिवार्य है। अपने शहरों, कस्बों, गांवों में लगी महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों की साफ सफाई का अभियान चलाएं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। अरुणाचल प्रदेश के दिरंगा के सुदूर क्षेत्र पश्चिम कामेंगो जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर आयोजित तिरंगा यात्रा में जवानों, स्कूल के बच्चों, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और बड़ी संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। दिरंगा क्षेत्र की जनता का देश प्रेम और तिरंगा के प्रति समर्पण अप्रतिम रहा है। राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए और नारों के साथ करते सभी शहर के सभी प्रमुख स्थानों और रास्तों पर गए। दिरंगा बस्ती और बाजार क्षेत्र से गुजरते हुए बड़ी संख्या में लोग भी रैली में शामिल हुए और अपने घरों से हाथ हिलाकर और नारे लगाकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आयकर विभाग ने आज तमिलनाडु में फिल्म उद्योग से जुड़ी 10 से अधिक हस्तियों के जुड़े 40 परिसरों पर छापेमारी की। विभाग ने यह कार्रवाई कुछ तमिल फिल्म निर्माताओं और वितरकों द्वारा संदिग्ध कर चोरी को लेकर की है। आयकर विभाग ने आज पूरे तमिलनाडु में 40 से अधिक स्थानों की तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि कलीपुली थानू, एसआर प्रभु, अम्बुचोझिया और झानवेल राजा समेत करीब 10 तमिल फिल्म निर्माताओं और वितरकों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों ने सुबह करीब 6 बजे तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया। रामपुर मिल्क कोतवाली क्षेत्र के जालिफ नगला गांव में घर में घुसकर एक किशोरी पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गया और किशोरी चीखती हुई 2 मंजिला पर अपनी मां को आवाज देते हुए पहुंची। इस दौरान मां शौचालय में थी। जब वो बाहर आई तो आनन फानन में पति को सूचना दी और बेटी को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गई, जहां पर किशोरी की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सीओ, एएसपी सहित पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस मामले के हत्या आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। जो जालिफ नगले के रहने वाले उन्होंने थाने पर आकर तहरीर दी कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और इसमें नामजद उन्होंने तहरीर दी है। जो हत्यारा है वो बताया गया है हसन नाम का है लड़का, जो इस लड़की से मिलता जुलता था और आपस में बातचीत करते थे। ये लड़का कई बार इनके घर भी आया है
और सितारगंज का रहने वाला है। सर बताते हैं कि लड़का जो घर पे आया था तो उस टाइम मौके पर माँ भी मौजूद थी। हाँ, ये माँ ऊपर थी और उसने नीचे इस पर जो वार किया तो माँ ऊपर से उतर कर आई। उसने देखा कि हसन उसे चाकू से गोद रहा, और लेकिन धक्का देकर, कमज़ोर माँ है। तो क्या सर ये किस टाइम की घटना है लगभग? ये पुलिस को तो लेट सूचना दी इन्होंने और ये घटना 6 बजे के करीब बताई जा रही है। किस टाइम पुलिस को सूचना दी? पुलिस को तो बहुत देर में सूचना दी, 8 बजे के पास। तो सर इस टाइम युवती की मृत्यु कब तक हो चुकी थी? सुना है कि मृत्यु के पहले से युवती ने बयान दिए हैं, कुछ माँ को मरने से पहले कुछ कहा है युवती ने। हाँ, लड़की ने तो बताया ना सब कि ये हसन है, माँ भी जानती थी वैसे हसन। सर मृत्यु के बाद परिजन शव लेकर चाचा के घर में शव रखा गया था, अपने घर में नहीं रखा गया था। नहीं, इतना नहीं पाए यार, ये क्या बात है सर? ऐसा सुनने में आया कि बाइट यार एक रहेंगे तो इसीलिए हम लोग डालते हैं बाइट। अब आप शाम रात भर पूछते रहोगे, अब बाइट में डालूंगा जाकर। तो बाजार में था, अब ये का मतलब माँ बेटी दोनों घर पर थी, वो का मतलब ऊपर थी, लड़की नीचे थी, नीचे लेटी थी। कोई आया मतलब उसका मतलब गले पे छुरी मार कर चला गया। आपकी बेटी की? हमारी बेटी की। क्या नाम है उसका? बेटी का हमारी? वो बेटी ने मतलब मरते दम तो ये बताया मतलब कि हसन नाम का लड़का गले मार कर चला गया। क्या बेटी है आपकी? 4 बेटी है। हसन कहाँ का है? हसन का मतलब कोई है ही नहीं, हसन कोई जानकारी भी नहीं। अच्छा, घर पर कौन कौन था उस टाइम? घर पर ये दोनों माँ बेटी थी, उसकी मम्मी थी और मतलब ये थी। माँ कहाँ थी? माँ ऊपर थी, ऊपर। हाँ, ऊपर कमरा पर हुआ ना, ऊपर थी। तो उन्हें चीख पुकार की आवाज नहीं आई? वो ये का मतलब लड़की का मतलब खुद गई है का मतलब चीखते हुए, अरे अम्मी, अरे अम्मी। आगे समझ ले ना, जब लड़का अंदर आया था तो चाकू मारने से पहले लड़की ऊपर गई चीखती हुई? नहीं, चाकू लगने के बाद गई? वो तो लेटी हुई थी, लेटी हुई उसका मारा, अंदर कमरे में लेटी हुई थी। उसके बाद चली गई ऊपर? हाँ, तो वो गर्म हवा में चली गई। आपने पुलिस को सूचना कब दी थी? पुलिस को सूचना करीब दिया 8 बजे। तो तब तक कहाँ ले गए? वो यहाँ कादरी में दिखाया था। अच्छा, मैं तो बाद में आया था, उसी घर के और परिवार के लोग तो वो ले गए, फिर वो वहाँ उसमें ले गए मतलब। तो आपको क्या लगता है जी इस घटना के पीछे? आपको क्या लगता है भाई? अब तो ये अल्लाह बेहतर ही जाने का मतलब, अब मैं क्या बता सकता हूँ। किसी से दुश्मनाई नहीं, किसी से शक नहीं है, मेरे कहीं परिवार में कोई ऐसा नहीं है ना। कहीं तो मेरी बेटी ऐसी किस क्लास में पढ़ती थी? किस क्लास में पढ़ती थी ये ना? अब तो इसने पढ़ाई बंद कर रखी ना, इंटर कर लिया। अच्छा, इंटर कर लिया है जी। अब घर पर काम करती है सिलाई का? ना, कुछ नहीं करती। अच्छा। हाँ, खाली तो घर पे केवल माँ बेटी थी जब? हाँ, माँ बेटी थी। केरल विधानसभा में 18,728 दिन पूरे होने के साथ 78 वर्षीय कांग्रेस नेता और 2 बार के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने सबसे लंबे समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड पहले केएम मणि के पास था, जिनका 2019 में निधन हो गया। अब फिर से ये रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है। चुनाव लड़ने के बाद से मणि और चांडी दोनों ने कभी भी अपनी सीट नहीं गंवाई है। मणि ने 1967 से पाला सीट का प्रतिनिधित्व किया था और चांडी ने 1970 से पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। दोनों निर्वाचन क्षेत्र कोट्टायम जिले में हैं। 1965 में विधानसभा चुनाव होने के बाद क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और किसी ने भी विधायक के रूप में शपथ नहीं ली थी और इसलिए मणि पहली बार 1967 में ही विधायक बने थे। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने आतंकवादी संगठन अल-कायदा के सरगना अयमन अल जवेरी को ड्रोन हमले में मार गिराया है। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा के आतंक पर अमेरिका ने सबसे बड़ा प्रहार किया है। बताया जा रहा है कि काबुल के शेरपुर इलाके में जवाहिरी को ढेर किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाल्की में अन्ना बहु साठे के 102वें जन्मदिन के अवसर पर कर्नाटक रक्षा वेदी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेताओं की ओर से रोगियों में ब्रेड फ्रूट्स वितरण किए गए। मंकी पॉक्स को देखते हुए बेंगलुरु में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग के आदेश। पुष्ट केसों में 21 दिन का आइसोलेशन भी जरूरी। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं देती? केंद्र सरकार पर असद ओवैसी ने कसा तंज। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रचार के लिए सांसद निकालेंगे बाइक रैली, उपराष्ट्रपति दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी ने सभी सांसदों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम जोर शोर से मनाने के दिए निर्देश।
तमिलनाडु में फिल्म उद्योग से जुड़ी 10 से अधिक हस्तियों के परिसरों पर आयकर के छापे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।